السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ نے اب تک سی ٹی کے رجسٹریشن کے لیے آپ نے کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو اب بھی آپ اپنا رجسٹریشن مکمل کر لیں، کیونکہ اس کی آخری تاریخ 26 جولائی ہے۔ اور اس کے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائے تھے وہ سی ٹی کے لیے مختلف اسباق کے تھے، لیکن اب کچھ گائیڈ لائن آ گئی ہے بورڈ کی طرف سے۔ جو نیا جی آر آیا تھا اس میں سلیبس دیا ہوا تھا، جس میں جغرافیہ کے اور تمام مضامین کے اسباق کے نام دیے گئے تھے، مراٹھی اور انگلش میں۔ یہاں میں نے جغرافیہ کے مضامین کے سبق نمبر میں نے لکھا ہے۔ سبق نمبر 2 ہے یعنی محل وقوع، سبق نمبر 3 ہے آبی نظام اور بھارت کی طبعی ساخت، اور تیسرا ہے 5واں سبق ہے نباتات اور حیوانات، برازیل بھارت کا 8واں ہے معیشت اور پیشے، 9واں ہے نقل و حمل، مواصلات اور سیاحت۔ اس طرح سے یہ 5 اسباق سبق نمبر 2، 3، 5، 8 اور 9۔ اس کے پہلے میں نے سبق نمبر 4 کے ویڈیوز بھی بنائے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو سلیبس میں اب نہیں شامل کیا گیا ہے، لیکن رواں سال کے جغرافیہ کے طلبہ کے لیے وہ کافی اہم ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ ان 5 اسباق پر مشتمل سوالات اب آپ تیار کریں، سبق نمبر 2، 3، 5، 8 اور 9۔ تو آئیے آج میں سبق نمبر 8، اب میں نے سبق نمبر 6 اور 7 کو اسکپ کر دیا ہے کیونکہ وہ سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ تو آئیے سبق نمبر 8 یعنی اکانومی اینڈ آکوپیشن، معیشت اور پیشے۔ بھارت کی فیکس آمدنی برازیل سے کم ہے کیونکہ قومی پیداوار کم ہے، کثیر آبادی ہے، بڑے خاندان ہے۔ بھارت کی کل آمدنی تو زیادہ ہے برازیل سے، لیکن فیکس آمدنی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آبادی کی کثرت ہے، یعنی کثیر آبادی ہے، زیادہ آبادی ہے، تو پر کیپٹا یعنی فیکس آمدنی کم آتی ہے۔ کل آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کرنے پر کیپٹا انکم ظاہر ہوتی ہے، تو یہاں کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے فیکس آمدنی کم ہے۔ دوسرا سوال ہے برازیل کی معیشت وہاں کے پیشے پر منحصر ہے۔ برازیل کی معیشت ثانوی، ثالثی یا ابتدائی کون سے پیشے پر منحصر ہے؟ تو برازیل کی معیشت کا زیادہ تر حصہ ثالثی پیشے سے آتا ہے، وہاں کی آمدنی کا حصہ یعنی خدمات مختلف قسم کی ثالثی پیشوں پر منحصر ہے۔ اس کے لیے ڈائیگرام دیا گیا کتاب میں، اس ڈائیگرام کو دیکھیے بھارت اور برازیل دونوں کے متعلق۔ سوال نمبر 3، بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ڈیش قسم کی ہے؟ بھارت اور برازیل کی معیشت کی قسمیں کون سی ہیں؟ دونوں غیر ترقی یافتہ، ترقی یافتہ یا ترقی پذیر۔ دونوں ممالک ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں، تو بھارت اور برازیل دونوں کی معیشت ترقی پذیر ہے۔ چوتھا سوال ہے بھارت کی ریاست میں نمک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کون سی ریاست ہے جس میں نمک کی پیداوار نہیں ہوتی ہے؟ مغربی بنگال، بہار اور مہاراشٹر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے 2 ریاستیں ساحلی ریاستیں ہیں، مہاراشٹر اور مغربی بنگال، یہ دونوں ساحلی ریاستیں ہیں، لیکن بہار اندرون ملک ہے، کوئی سمندر کے کنارے یہ نہیں ہے، یہاں پر نمک کی پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے برازیل بڑے پیمانے پر ڈیش برآمد کرتا ہے، کون سی شے؟ برآمد یعنی ایکسپورٹ کرنا، اپنے ملک سے دوسرے ملک کو اشیاء بھیجنا برآمد کہلاتا ہے، ایکسپورٹ کہلاتا ہے۔ کافی، موٹر گاڑیاں، کھاد، کون سی شے برآمد کرتا ہے؟ تو برازیل بڑے پیمانے پر کافی برآمد کرتا ہے، کیونکہ کافی برازیل کی روایتی برآمدات میں شامل ہے، بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے، اور وہ کافی کا پاٹ بھی کہلاتا ہے، برازیل کافی کا پیالہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں ڈیش معیشت ہے؟ معیشت کی 3 قسمیں ہیں، تو کون سی معیشت بھارت برازیل میں ہے؟ اشتراکی، سرمایہ دارانہ، مخلوط۔ تو بھارت اور برازیل دونوں میں مخلوط معیشت ہے، کیونکہ بھارت اور برازیل میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو مکمل طور پر حکومت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، یعنی عوامی شعبے میں شامل ہیں، اور بہت ساری ایسی صنعتیں، بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو نجی شعبے یعنی نجی افراد کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس طرح سے ملی جلی معیشت ہے، مخلوط ہے بھارت برازیل دونوں کی۔ سوال نمبر 7 ہے قدرتی وسائل پر منحصر سرگرمیوں کو ڈیش سرگرمی کہتے ہیں؟ ایسی سرگرمیاں جو قدرتی وسائل پر منحصر ہوں انہیں ابتدائی سرگرمیاں کہتے ہیں، جس میں ماہی گیری ہے، جنگلات سے ذخیرہ اندوزی ہے، زراعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ابتدائی سرگرمیاں ہیں جو مکمل طور پر قدرتی وسائل پر منحصر ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے
डैश को सलासी सरगर्मियों में शामिल किया गया है। पहले आप तारीफ़ यूँ समझ लीजिए कि इब्तदाई सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर कुदरती वसाइल पर मुनहसर होती हैं। दूसरा, सानवी सरगर्मियों में हम तामीरात वगैरह और सनअत और दूसरी चीज़ों को शामिल करते हैं। सलासी सरगर्मियों में खिदमत शामिल हैं। तो सलासी सरगर्मी की कौन सी अहम सरगर्मी है? सनअत, तामीरात, खिदमत। सनअत है, सनअत में हम कुदरती वसाइल से कच्चा माल लेकर के उसको पुख्ता माल में तब्दील करते हैं, इसको सनअत कहते हैं। तो सलासी सरगर्मियों में शामिल किया गया है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ सलासी सरगर्मियों में सनअत को नहीं बल्कि तामीरात को शामिल किया गया है। तामीरात और सलासी सरगर्मियाँ, देखिए सवाल को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। सलासी सरगर्मियों में तामीरात और सनअत दोनों नहीं शामिल हैं बल्कि खिदमत शामिल है। माफ़ कीजिएगा, खिदमत, तमाम तरह की खिदमत शामिल है सलासी सरगर्मियों में। सवाल नंबर 9, मंदरजा झैल में किस मुल्क की कौमी पैदावार ज़्यादा है? कौमी पैदावार तीनों मुल्कों में, भारत, ब्राज़ील और यूएसए की ज़्यादा है। किताब में, पुरानी किताबों में यहाँ UNO लिखा हुआ है, UNO, दरअसल वो मिसप्रिंट है, वो UNO नहीं होना चाहिए, वो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल है, चावल की पैदावार डैश सरगर्मी है? कौन सी सरगर्मी है चावल की पैदावार करना? सानवी, इब्तदाई, सलासी। हमने इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में पढ़ा था। ये कुदरती वसाइल पर मुनहसर होती हैं, तो ये चावल की पैदावार खेती में शामिल है, तो इब्तदाई सरगर्मी है। ज़राअत को इब्तदाई सरगर्मी शामिल किया गया। सवाल नंबर 11 है, गुड़ तैयार करना डैश सरगर्मी है? एक चार्ट दिया गया है किताब के अंदर, बहुत सारी सरगर्मियों के नाम, इब्तदाई, सानवी, सलासी सरगर्मी का टिक करना था कौन सरगर्मी है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो गुड़ तैयार करना किस किस्म की सरगर्मी है? क्योंकि गन्ने को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद एक नई चीज़ तैयार की जाती है गुड़, ये सानवी सरगर्मी है क्योंकि ये एक किस्म की सनत है, सनतों का शुमार सानवी सरगर्मी में है। 12वां सवाल है, भारत में सेहत का शोबा डैश शोबे में शामिल है? कौन से शोबे में शामिल है सेहत का? खानगी, अवामी और खानगी। 3 हैं, अवामी यानी जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की निगरानी हो, खानगी जो मुकम्मल तौर पर आवाम यानी निजी अफराद के हाथों में है, और खानगी अवामी दोनों मिली जुली। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही है। भारत में सेहत का शोबा खानगी भी अवामी भी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स आपको गवर्नमेंट के भी मिल जाते हैं और प्राइवेट भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। 13वां सवाल है, भारत में डैश फ़ीसद आबादी इब्तदाई पेशों से मुंसलिक है? कितनी फ़ीसद आबादी इब्तदाई शोबों से मुंसलिक है भारत के अंदर? यह भी पाई डायग्राम की शक्ल में एक डायग्राम दिया गया भारत ब्राज़ील के लिए। तो 48.8% आबादी भारत की इब्तदाई किस्म के पेशों में शामिल है। भारत का अहम पेशा डैश है? भारत का सबसे अहम पेशा ज़राअत है, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी इससे मुंसलिक है। 15वां सवाल है, ब्राज़ील की कौन सी फसल नकदी फसल में शामिल नहीं है? नकदी फसल वो है जिसे किसान बेच करके उससे नकद हासिल करता है, चावल, रबर, कॉफ़ी। तो इसमें कॉफ़ी और रबर तो नकदी फसल है, लेकिन चावल ग़िज़ाई फसल है। ठीक है, तो चावल नकदी फसल नहीं है। अमेज़न की वादी में मादनियात की तलाश बहुत मुश्किल है, क्योंकि मादनियात की तलाश अमेज़न की वादी में क्यों ज़्यादा है, मुश्किल है? कि दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा है, घने जंगलात की वजह से कुदरती रुकावट है। तो घना जंगलात जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दुश्वार गुजार इलाका है, जहाँ पर जाना, पार करना और वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करना ये मुश्किल काम है। घने जंगलात की वजह से कुदरती रुकावट है। हालांकि बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, दर्जे हरारत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों रीज़न ख़ास नहीं, इन दोनों की वजह से जंगलात पाए जाते हैं, तो ये तीसरी वजह से ही है। 17वां सवाल, झैल से कौन सी फसल भारत की अहम ग़िज़ाई फसल नहीं है? ग़िज़ाई फसल भारत की कौन सी नहीं है? गेहूँ, सोयाबीन, चावल। याद रखिए, सोयाबीन ग़िज़ाई फसल नहीं है, तेल वाली फसल है, लेकिन अहम ग़िज़ाई फसलें जो पूछी गई हैं वो गेहूँ, चावल तो अहम ग़िज़ाई फसलें हैं, लेकिन नहीं कौन सी फसल है ये पूछा गया, तो सोयाबीन ग़िज़ाई फसल अहम ग़िज़ाई फसलें नहीं हैं। फसलों को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको तकसीम करते हैं। तेल वाली फसलों को तिलहन की फसलें कहते हैं, इसी तरह से दाल वाली फसलों को दलहन की फसलें कहते हैं, सोयाबीन तिलहन की फसलें। 18वां, भारत में डैश माहीगीरी की जाती है? भारत में
मीठे पानी की, खारे पानी की, खारे और मीठे पानी की दोनों। तो भारत में दोनों माहीगीरी की जाती है, मीठे पानी की, खारे पानी की भी, क्योंकि भारत को 7,500 किलोमीटर लंबा साहिल है जिसमें खारे पानी की माहीगीरी होती है। बहुत सारी दरिया, बहुत सारे तालाब, झील हैं जिसमें मीठे पानी की माहीगीरी होती है। तो याद रखिए, मीठे पानी की माहीगीरी वाला सबसे अहम रियासत मगरबी बंगाल है, खारे पानी की माहीगीरी वाली सबसे अहम रियासत महाराष्ट्र है। तो इस तरह से मीठे पानी और खारे पानी दोनों की माहीगीरी होती है। सवाल नंबर 19 है, डैश की सतह मुर्तफ़ा पर मादनियात का ख़जाना है। कौन सी सतह मुर्तफ़ा जहाँ पर मादनियात पाए जाते हैं? मेवाड़, मालवा, छोटा नागपुर। तो झारखंड में छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा है जो मादनियात का ख़जाना है, वहाँ पर मादनियात की दौलत से माला माल है। 20वां सवाल है, भारत में संगमरमर डैश रियासत में पाया जाता है। कौन सी रियासत है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो रियासत है राजस्थान जिसमें संगमरमर की कानें पाई जाती हैं। याद रखिए, मकराना की कानों से ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर हासिल किया गया था। सवाल नंबर 21 है, भारत डैश बड़े पैमाने पर बरामद करता है। भारत कौन सी चीज़ बरामद करता है? मादनी तेल, मशीनें, खाम लोहा और सोना, चाय और गरम मसाले। चाय और गरम मसाले भारत बड़े पैमाने पर बरामद करता है, दूसरे मुल्क को भेजता है। दोनों रिवायती बरामदात में शामिल है। 22वां सवाल है, भारत में जीएसटी में लागू किया गया। कब लागू किया गया? भी भारत में जीएसटी 2017 में लागू किया था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस 2017 में लागू किया था भारत ने। ब्राज़ील में जीएसटी कब लागू किया? ब्राज़ील में जीएसटी 1984 में लागू हुआ। भारत से बहुत पहले जीएसटी ब्राज़ील में 1984 में लागू हो गया था। 24वां सवाल है, दरअसल में से कौन सा मुल्क ब्रिक्स में शामिल नहीं है? ब्रिक्स, जैसा कि इसके नाम से आप वाज़ेह हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से कौन सा मुल्क इसमें शामिल नहीं है? चीन और ब्राज़ील तो शामिल है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जवाब इसका पाकिस्तान है। भारत में डैश के इलाके में तेल का कुआं है। तेल का कुआं यानी कुदरती गैस और तेल पाए जाते हैं मगरबी बंगाल में, मालवा में, बॉम्बे हाई में। महाराष्ट्र के साहिल के, मुंबई के साहिल के करीब 100 किलोमीटर अंदर समुद्र में बॉम्बे हाई का इलाका है जहां तेल के कुएं पाए जाते हैं, कुदरती गैस निकाली जाती है। इस तरह और भी कई इलाके हैं भारत के अंदर। ब्राज़ील के जुनूब मशरक़ी साहिल पर ज़्यादा माहीगीरी होती है, क्योंकि जुनूब मशरक़ी साहिल पर ब्राज़ील के यानी ब्राज़ील का जो ये हिस्सा है, ये हिस्से पर यहाँ माहीगीरी होती है, ज़्यादा माहीगीरी होती है। क्यों कटाफटा साहिल है, सर्द और गर्म पानी की रौ मिलती है, माहीगीरी के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल होता है। बी ऑप्शन सही है। बी, सर्द और गर्म पानी की रौ है। ब्राज़ील के इस हिस्से में गर्म पानी और सर्द पानी की रवें आपस में मिलती हैं, तो जहाँ पर गर्म और सर्द पानी की रवें मिलती हैं वहाँ पर कोहरा छा जाता है। माहीगीरी के लिए बहुत अहम इलाका होता है। याद रखिए तलबा और तालिबात, अगर आपने अब तक ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। 27वां सवाल है, भारत में कडप्पा पत्थर की कान डैश रियासत में है। कडप्पा जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, भारत में कडप्पा की पत्थरें आंध्र प्रदेश रियासत में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एपी मैंने शार्ट में लिखा है, आंध्र प्रदेश है। 28वां सवाल है, ब्राज़ील में सनतों का इर्तिकाज़ यानी सनतें कहाँ पर कायम है बड़े पैमाने पर? डैश इलाके में हुआ है। शुमाल मशरक़ी, जुनूब मशरक़ी, शुमाली। तो ब्राज़ील के अंदर जुनूब मशरक़ी हिस्से में यानी ब्राज़ील का ये हिस्सा यहाँ पर सनतें बड़े पैमाने पर हैं, क्योंकि यहाँ की आबहवा मोतदिल है। इसके अलावा यहाँ मैदानी इलाका है, बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सरगर्मियाँ हैं, बहुत सारी सनतें, यहाँ नक़ल हमल के ज़राए हैं, इसलिए सनतों का क़याम हुआ है। 29वां सवाल है, ब्राज़ील में काफ़ी का तारुफ़ नौआबादकारों ने कराया है। बुनियादी तौर पर इथियोपिया का पौधा है, यानी काफ़ी इथियोपिया का पौधा, इथियोपिया से ब्राज़ील के अंदर किसने तारुफ़ कराया? कौन से नौआबादकारों ने? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, बरतानवी। तो सही जवाब है फ्रांसीसी नौआबादकारों ने ये ब्राज़ील में इथियोपिया से ये पौधा ला करके मुतारिफ़ कराया ब्राज़ील वालों को। आज ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क है। 30वां सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा नमक की पैदावार डैश रियासत में होती है। कौन सी रियासत इसमें सबसे ज़्यादा नमक पैदा की जाती है? ये 3 रियासतों के नाम दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। याद रखिए तीनों रियासतों में नमक पैदा की जाती है। गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु ये दोनों साहिली रियासतें हैं। राजस्थान में
चिल्का झील जो है, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान में जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील से नमक पैदा की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नमक पैदा होती है कौन सी रियासत में? वो रियासत गुजरात है। ठीक है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से आप एक सबक और रह गया है। इसके अलावा बहुत सारे सवालात आपके बनेंगे जो इम्तहान की तैयारी के लिए। ये तो कुछ नुमाइंदा सवालात थे, 30 सवालात मैंने बनाए, 9वां सबक बाकी है, उसका इंशाअल्लाह जल्दी वीडियो रिलीज़ किया जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आपको कोई दुश्वारी पेश आए तो इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।